Hello, all the student of class 10. I am Amit sir. I present here about discussion resources. Today we discuss classification of resources by this given chart. So let's start. All the student of class 10 carefully listen. Resources have two types. First is natural and second is human. Natural resources are also divided in two categories, renewal and other is non-renewal. Here renewal is also divided in two different categories. First is continuous or flow, example wind and water. Other is biological. Biological resources are also categorized in two different parts, natural vegetation, that means forest, and other is wildlife. Non-renewable resources are also classified into two different categories, recyclable, example metals, and other is non-recyclable, for example fossil fuel. The other main parts of resources is human resources are categorized in two different parts, structures and institutions, and other is quality and quantity. This all types is very important. You understood this chart carefully, okay बच्चों? इस चार्ट से संबंधित जो भी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम इनके बारे में ब्रीफ हम नेक्स्ट पेज में जानेंगे। सबसे पहले हम अपना एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। बच्चों अभी हम रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स जाने थे, आपको उन सब के दो दो जो एग्जाम्पल है वो लिखना है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 याद कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वी ऑल्सो नो दैट resources are divided into two categories on the basis of origin. First is biotic resources. These resources obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. बच्चों
बायोटिक रिसोर्सेज हम ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और उनमें भी लाइफ पाया जाता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में है, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, एक्स्ट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज। All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. बच्चों, वे सारे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल में रॉक्स और मेटल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे और सेकेंड ऑफ द टाइप्स which is base for the classification of resources. This is exhaustibility, that means होता है फिर से नए बनने की क्षमता, यानी कि इसके अंतर्गत हम रिसोर्सेज को दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटे हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानते हैं। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replaceable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वे सारे के सारे रिसोर्सेज जिन्हें हम फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा फिर से गेन कर पाए, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसका एग्जांपल सोलर लाइट हो जाएगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आप सोच के इसको कॉपी में राइट कीजिएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस ऑकर over a very long geological time. Minerals and fossil fuel are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their uses. बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो इस पृथ्वी पे लंबे जियोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा बना हो। मिनरल्स और जो फॉसिल्स फ्यूल है, यह इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इन रिसोर्सेज को जियोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनने में मिलियंस ईयर का समय लगता है। इस रिसोर्स के अंतर्गत जो मेटल्स है ये रिसाइक्लेबल होते हैं, लेकिन जो फॉसिल्स फ्यूल है ये रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं।
इनकी उपयोगिता के अनुसार ये समाप्त होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।